नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. We are familiar with the rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? अब आप खुद सोचो, बेसिकली देखा जाए जो लाइट हमें सन से मिल रही है दैट इज वाइट, और जो वाइट लाइट है उसका यूज करके एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसे 7 कलर्स हमें शो कर रहे हैं. Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism, जो अभी लास्ट टॉपिक हमने किया था. The inclined refracting surface of the glass prism shows some exciting phenomena. Let us find it through an activity. तो बेटा एक्टिविटी क्या कह रही है, देखो क्या क्या आपको करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, take a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle. Allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives a narrow beam of white light. Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on the one of its faces. जैसा कि फिगर में हमें शो किया हुआ है. Turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. ठीक है, अगर स्क्रीन पे हो रहा है ऑब्जर्वेशन तो आप समझ सकते हैं. What do you observe? You will find a beautiful band of colors, and this beautiful band of colors is basically a spectrum. ठीक है. Why does this happen? तो ऐसा क्यों हुआ? तो हमें पता है, हमें एक ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम मिलेगा that is in the form of Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो ये कलर्स का कॉम्बिनेशन है. विबग्योर इज अ एक्रोनिम जिससे आप याद कर सकते हो सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन को. अब ऐसा हुआ क्यों, ये देखिए. द प्रिज्म हैज probably split the incident white light into a band of colors. Note the colors that appear at the two ends of the color band. यहाँ पे देखो सबसे नीचे है violet, then indigo, blue, green, yellow, orange, red. ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ये व्हाइट लाइट की एक बीम आ रही है यहाँ पे. देखो यहाँ से आप ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग शुरू हो गई है बेटा. एक कलर यहाँ जा रहा है, तो ये कलर क्या हुआ है, कम डिफ्लेक्ट हुआ है. और जो एक कलर है वो यहाँ जा रहा है. आप खुद देखो यहाँ पे एंगल ज्यादा है ना, तो ये डेविएशन ज्यादा हो शो कर रहा है. अगर ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो सीधी जाती रही. ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट के बाद रिफ्लेक्शन शुरू हो गया बेसिकली. ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्पर्जन बेसिकली. ठीक है, तो आप सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, splitting the incident white light into its 7 component colors. Clear definition? What is the sequence of the colors that you see on the screen? The colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Acronym VIBGYOR है, will help you to remember the sequence of the colors. ये रहा. The band of colored components of a light beam is called its spectrum. मतलब इन जो कलर्स का कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. लेकिन ये जो फिनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं डिस्पर्जन. यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, क्योंकि हम लोग जब रेनबो को देखते हैं ना ध्यान से, तो इंटेंसिटी वाइज हमें 2 या 3 कलर ही मैक्सिमम दिखाई देते हैं. येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. यहाँ से मार्क करो, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स component colors is called dispersion. नेक्स्ट देखिए बेटा, ये सीन white light is dispersed into its 7 color components by a prism.
Why do we get these colors? Different colors of light bend through different angles with respect to incident ray as they pass through a prism. यही रीजन है, हर एक कलर अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होता है. द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट. रेड की बेंडिंग सबसे कम है, वॉयलेट की सबसे ज्यादा है. Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is the band of distinct color that we see in a spectrum. Is it clear बेटा? अब नेक्स्ट देखो न्यूटन ने क्या किया. इसाक न्यूटन was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. ये पहला, मतलब न्यूटन ने हर जगह ये काम किया फिजिक्स में बेसिकली. पहले क्या किया, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, पहले एक ग्लास प्रिज्म P1 रखा इस पोजीशन में. क्या हो गया, डिस्पर्सन हो गया, रेड वॉयलेट बाकी दिखाया नहीं. अब रेड और वॉयलेट जा रहे हैं, लेकिन सेकंड पोजीशन जो सेकंड प्रिज्म है वो क्या है बेटा, इनवर्टेड है. हमने उल्टा करके रखा हुआ है. यहाँ पे बेस नीचे है और यहाँ पे बेस आप देख सकते हो ऊपर है. तो क्या हुआ, अगेन रिफ्लेक्शन हुआ. अब की बार दोबारा से 7 कलर्स मिक्स हो गए और जो फाइनल आउटकम मिलेगा ना बेटा, दैट इज व्हाइट लाइट ऑन द स्क्रीन. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, recombination of the spectrum of white light. This was done by Isaac Newton. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors.